Myself, Ashwin Kotecha, taking accountancy since 1981. Today, I'm going to give the solution of accountancy test, unit test 2, section A, MCQ. First, what percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to interest on capital of partnership deed? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना चाहिए? सी, आपको पता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ partnership deed is not prepared, then we have few provisions, and one of the is no interest is payable on capital and no interest is chargeable on drawings. So यहाँ पे आपका आंसर होगा no interest, that is section that is D. Second, at the time of reconstruction of a partnership firm, dash is prepared. रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? आपको पता है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, तो हमें जो डिफरेंस लिखना है वो कौन से अकाउंट में लिखेंगे? वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो आपका ऑप्शन होगा बी, रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 and 4 in one sentence. क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल? आपको पता है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, these are the 4 intangible assets, invisible assets. So goodwill is intangible asset. Fourth, what is reconstruction of partnership firm? What is reconstruction of partnership firm? See, reconstruction means what? The changes in partnership due to several reasons, जैसा कि change in P&L ratio, new partner is admitted, one partner retires, या तो death of a partner. So when there is a change is made in partnership, that is called reconstruction. Let's start now section C. 3 markers question, total 6 marks. Section C. Question number 5. A, B and C are the partners sharing P&L in equal proportion. That is 1:1:1. Their total capital is 4,50,000. 4,50,000 is the total capital. Their proportion of capital is 1:3:2. Very interesting. ये जो proportion दिया है वो P&L नहीं है. That is a capital ratio. So 1:3:2. तो क्या करोगे? 4,50,000 को आप डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में, 1:3:2 रेशियो में. दैट वर्किंग यू टू शो, इट इज योर ड्यूटी टू शो. आई एम गिविंग सॉल्यूशन ओनली. सो कैसे कैपिटल फाइंड करोगे? 1:3:2 मतलब 6, 1/6 इंटू 4,50,000, इट कम्स 75,000. देन 3/6 इंटू 4,50,000, it comes 2,25,000. Then 2/6 into 4,50,000, it is 1,50,000. So this is your capital, just for your knowledge. Okay, ये बाउंड्री बना देना, ठीक है. अभी क्या दिया है? फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%. 9% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है. एस कैपिटल इज 75,000, तो 9% कितना आएगा? 6,750. बीस कैपिटल इज 2,25,000, तो 9% कितना आएगा? 20,250. एंड सी's कैपिटल इज 1,50,000, तो 9% कितना आएगा? 13,500. So interest on capital is 6,750, 20,250 and 13,500 respectively of A, B and C. C has received 73,500 including interest. Determine the amount payable including interest on capital of A and B. यहाँ पे जो total income है ना, that is 73,500. This is the total income of C including interest. कितना इंटरेस्ट है बताओ? 13,500. आपको पता है टोटल इनकम इज इक्वल टू व्हाट? टोटल इनकम इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC प्लस डिविजिबल प्रॉफिट.
So what is the total income of C? 73,500 including interest. कितना इंटरेस्ट है बताओ ये. सो ये जो डिफरेंस है ना फ्रेंड्स, सो 73,500 माइनस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना 13,500, सो वी कैन से 60,000 इज द डिविजिबल प्रॉफिट. यहां पे P&L रेशियो क्या है? 1:1:1. मतलब 60,000 अगर C की इनकम है, C का डिविजिबल प्रॉफिट है, देन द प्रॉफिट ऑफ A एंड B वुड बी द सेम 60,000. अब क्या करोगे? टोटल इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये प्लस करोगे ये दोनों का टोटल, ये प्लस करोगे ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल, दैट इज 66750 दिस इज द टोटल इनकम ऑफ A इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. टोटल इनकम ऑफ B 80,250 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. क्लियर? बाद में लिख लेना. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन sum number 6. Bhavesh, Vipul and Hiral are the partners in a partnership firm. P&L ratio 2:1. They decided to share profit and losses ratio 3:1 in future. मतलब old ratio 2:1, new ratio 3:1. Find sacrifice ratio. Sacrifice ratio की फॉर्मूला आपको पता है, old share minus new share. Old share minus new share. So what is old share? 2:1. मतलब 2/5, 2/5, 1/5. What is the new share? 3:1. मतलब 3/6, 2/6, 1/6. अभी क्या करोगे? चलो लेट अस फाइंड. भावेश का सेक्रीफाइस हम फाइंड करते हैं. भावेश मीन्स B. ओके. 2/5 minus 3/6. 6 2s are 12, 5 3s are 15. 12 minus 15 is equal to -3/30. -3/30. उसके बाद विपुल 2/5 minus 2/6. 6 2s are 12, 5 2s are 10, 6 5s are 30. 12 minus 10 2/30. ये पॉजिटिव है, प्लस मतलब ये सेक्रीफाइस करता है, ये सेक्रीफाइस नेगेटिव मतलब ये हो गया गेन. वैसे अगर गेन और माइनस दोनों साथ में नहीं लिख सकते हो आप, जस्ट फॉर नॉलेज ये है गेन, या जस्ट मैं लिख सकता हूं लेकिन बोर्ड में नहीं लिखना है. तो ये हो गया गेन. ओके, ये हो गया सेक्रीफाइस. अभी थर्ड पार्टनर हीरल, ओल्ड रेशियो 1/5, न्यू रेशियो 1/6. 6 1s are 6, 5 1s are 5, 5 6 are 30. 6 minus 5 1/30. So this is sacrifice, this is sacrifice and this is gain. अभी हमें फाइंड करना है सेक्रीफाइस रेशियो. डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको करना है. सो 2/30, 1/30 मतलब 2:1 is the sacrifice ratio. Let's start now section D. Question number 7, 4 marks. This is of goodwill, intangible asset. From the following information of Nerutva and Rutvic's firm, determine the value of goodwill of partnership firm on the basis of capitalization of weightage average profit. Friends, यहाँ पे एक सम में दो चीज़ है. You have to find out weightage average profit and you have to find the goodwill by capitalization method. So profit को weightage method से हमें ढूंढना है. देखो year 14-15 profit is 45,000, 15-16 profit is 50,000, 16-17 profit 65,000, 17-18 75,000 and 18-19 90,000. प्रोग्रेसिव है. वेट लो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करो 45,000, 1,95,000, 3 lakhs and 4,50,000. मेक द टोटल. दिस प्लस दिस, ये टोटल आएगा 10,90,000. ये टोटल है, ये आपका वेटेज प्रॉफिट है. टोटल वेटेज प्रॉफिट. वेटेज एवरेज कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड वेटेज एवरेज? वेटेज एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. आपका टोटल वेट है 15. 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is equal to 15 is your total weight. 10,90,000 upon 15 is equal to 726666. 7266.66 recurring. So it is round up 72,667.
ओके, अभी कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो भी एवरेज है, अगर वेटेज से ढूंढना है तो हमें W लिख सकते हैं अपॉन ERR इंटू 100, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिया है आपका 10%। तो इससे पहले ना हमें क्या फाइंड करना है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिजनेस एसेट 6 lakhs, एसेट्स आर 6 lakhs, business liabilities are 1,70,000, so difference is 4,30,000. This is your capital employed. Your investment of capital is 4,30,000. अभी आपने वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाला। हाउ विल यू गेट वेटेज एवरेज प्रॉफिट? सी, प्रॉफिट और वेट नहीं दिया है तो रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5, सो ये आपका हो गया वेटेज प्रॉफिट 72,687। अभी कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालो। कैपिटलाइज प्रॉफिट की फॉर्मूला आपको पता है, ये वेटेज एवरेज है, इसलिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR इंटू 100। तो आपका वेटेज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट जो मिल गया है दैट इज 726,670, मतलब 7,26,670। योर इन्वेस्टमेंट इज 4,30,000। कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का डिफरेंस ये हो गई आपकी गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल टू 2,96,670। वेरी सिंपल। ओके फ्रेंड्स, नाउ वन थिंग, ये जो कैपिटल का वर्किंग है ना, दैट यू टू शो, दिस इज कंपल्सरी। यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो किया है, दिया है, मतलब यू टू फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो। डिनोमिनेटर इक्वल करो, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट में आपको फर्स्ट यू टू फाइंड आउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टेप नंबर 1। उसके बाद ERR दिया है 10%, इनकी जरूरत नहीं है। अभी वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको ढूंढना है, यू टू फाइंड आउट वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ओके, एंड देन कैपिटलाइजेशन एंड फाइनली गुडविल। ओके फ्रेंड्स, राइट डाउन। Hello friends, now let's start section E, question number 8, and that is final account, a very important sum. ये वैसे ये आपका टेक्स्ट बुक का ही सम है, लेकिन they made little changes. वैसे ये बोर्ड में भी होता है फ्रेंड्स, they change little, sometime वो लोग अलग भी सम बना के देते, सो कोई बोर्ड का भरोसा नहीं। So don't rely only on textbook, you know friends. थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक का भी सम आपको करना चाहिए to score 100 out of 100 marks. Anyway, so let's start sum number 8. Dharma and Karma are the partners sharing profit and losses in equal proportion. That is 1:1. From the following information, prepare their final account. So we are having trial balance as on 31/3/19. हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है वो 31/3/19 का है। वैसे हमें ये जो सम है ना वो शुरू करना है एडजस्टमेंट से, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड फर्स्ट। कैपिटल, धर्मा, कर्मा, सेल्स, गुड्स रिटर्न, डेबिट। डेबिट गुड्स रिटर्न का मतलब होता है फ्रेंड्स, बताओ, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, डेबिट रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड, ये 3 नाम है परचेज रिटर्न का। पेएबल्स, पेएबल मीन्स क्रेडिटर्स। सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक गलत चीज़ लिख गई। ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग के बेस से ओरिजिनली इट इज़ वेजिस आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे दिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग, हम लिखेंगे, लेकिन ओरिजिनली इट इज़ वेजिस आउटस्टैंडिंग। सो प्लीज़ नोट दिस, यू कंसर्न विथ योर टीचर ऑल्सो। लोन फ्रॉम धर्मा, Dharma is a partner, partner's loan is given, so you have to calculate 6% interest on 30,000. आपको 6% interest calculate करना है। Discount received, it is your income. Bank overdraft is your liability. Drawings you have to record on the debit side of partner's capital. Partner's capital की debit side आपको लिखना है। Opening stock trading account debit, purchase trading account, गुड्स रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिट गुड्स रिटर्न का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, रिसीवेबल मतलब डेटर। सैलरी ये हिडन एडजस्टमेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन, मशीनरी
डेप ऑन मशीनरी, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। बिल्डिंग एसेट साइड, वेजिस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन धर्मास लोन। ओ हो, सो ये 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, it is already given 1800, so there is no adjustment. Furniture, stationery, advertisement and cash. Okay, so now let's start your sum. Always advisable to start with the adjustment. Adjustment number 1, closing stock is 21,000. Closing stock is 21,000, in which stock of stationery 2,000 is included. So dear friends, we have total closing stock 21,000, including 2,000 stationery stock. 21,000 में 2,000 stationery stock है. It means 21 minus 2, 19,000. 19,000 is a good stock. So closing stock of the goods are 19,000. ये 2,000 stationery stock है. चलो let us check the effects. Stationery जो expense है friends, आपका टिक करो stationery expense. तो आपका जो स्टेशनरी एक्सपेंस है 7,000, ये 7,000 में से आपको 2,000 ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, दैट इज अनयूज स्टेशनरी, हमें माइनस करना है। अनयूज स्टेशनरी या तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 7,000 की स्टेशनरी है, 2,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, माइनस करो, आपकी स्टेशनरी कंजम्पशन होगा 5,000। और ये जो स्टेशनरी स्टॉक है, सेकेंड इफेक्ट ऑफ स्टेशनरी स्टॉक, बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि हमने यहां से माइनस किया है, देन सेकेंड इफेक्ट विल बी डेबिट साइड, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नाउ गुड्स स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स आर 19,000, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 19,000 एंड बैलेंस शीट एसेट साइड 19,000। फिर से समझाता हूं, वी आर हैविंग टोटल स्टॉक 21,000 इंक्लूडिंग स्टेशनरी स्टॉक 2,000, मतलब ये हुआ कि गुड्स स्टॉक्स आर 19,000। समझ गए? स्टेशनरी स्टॉक स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस बैलेंस शीट एसेट साइड, गुड्स स्टॉक आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, 19,000 रुपीज गुड स्टॉक। नेक्स्ट, ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%, मतलब ये हुआ कि यहां पे जो डेप्रिसिएशन दिया है दैट इज टू बी कैंसल। See, in this question, machinery and depreciation of machinery both are given in trial balance. Machinery भी दी गई है और depreciation भी दिया है, लेकिन हमें ये कैंसिल करना है because we have to increase up to 10%. Very simple friends. Machinery 71760 ये दिया है ट्रायल बैलेंस में, depreciation is given 6240. तो अभी क्या करो, जो depreciation हमने पूरा ने पहले माइनस किया था वो पहले प्लस करो, ऐड करो, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी हो गई 78,000। अभी आपको चार्ज करना है 10%। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%, मतलब जो पुराना डेप्रिसिएशन है दैट इज टू बी कैंसल। वो जो पुराना डे पे हमें कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, प्लस, तो प्लस करो, तो ओरिजिनल मशीनरी मिल गई 78,000। नाउ 10% डेप्रिसिएशन 7,800, सो 70,200। ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, ओल्ड डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गया, न्यू डेप्रिसिएशन 7,800। सेकेंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पीएनएल डेबिट 7,800। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। क्रेडिट सेल्स हुआ था तो नॉर्मली सेल्स में प्लस होना चाहिए, ऐड टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स है तो ऐड टू डेटर्स, दिस इज टू बी डन, ये होना था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने क्या किया, परचेज रिटर्न बुक में लिख लिया। इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, यू डिड लेस फ्रॉम परचेज, आपने परचेज में से माइनस किया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद करो 11th स्टैंडर्ड, राइट। इसीलिए ना फ्रेंड्स हम सभी चैप्टर डिटेल्स में करवाते हैं। ओके, सो इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, मतलब परचेज में से हमने माइनस किया था, तो अभी क्या करोगे, तो परचेज में प्लस करो 1,000 रुपीज बिकॉज इट वॉज रॉन्गली डिडक्टेड। ओके, नाउ अगर परचेज में से हमने जो माइनस किया था तो हम ऐड करते, तो आपका क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा, यू हैव टू ऐड टू द क्रेडिटर्स ऑल्सो, सो योर पेएबल्स आर 79,000 प्लस 1,000, टोटल क्रेडिटर्स विल बी नाउ 80,000। अभी आपको करेक्ट इफेक्ट देनी है फ्रेंड्स,
जो आपने क्रेडिट सेल्स किया था उनकी करेक्ट इफेक्ट दो। एड टू सेल्स, एड टू सेल्स, एड टू सेल्स एंड एड टू डेटर्स, एड टू सेल्स एंड एड टू डेटर्स। आई रिपीट, क्रेडिट सेल्स है तो आपको सेल्स में प्लस करना है, प्लस करो 1000 रुपीज प्लस करो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, देन ये जो 1000 है ना अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, अनरिकॉर्डेड, ये प्लस करो। और आपको प्लस करना है डेटर्स में, डेटर्स भी प्लस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट सेल्स है। सेल्स, क्रेडिट सेल्स रिलेटेड टू डेटर्स एंड परचेस रिलेटेड टू क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, क्रेडिट सेल्स वॉज रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक। आपको 4 इफेक्ट देनी है। फिर से देखो, जो क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स में प्लस करो, डेटर्स में प्लस करो, ये जो करेक्ट इफेक्ट है। आपने रॉन्ग क्या किया था, यू हैव एडेड टू द परचेस रिटर्न। अगर आप परचेस रिटर्न में ऐड करते हो तो आपने परचेस क्या किया होगा, माइनस, तो ऐड टू परचेस करो। अगर परचेस में ऐड करते हो तो आपका क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा। सो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, ये 4 इफेक्ट याद रखो। क्रेडिट सेल्स, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स, ऐड टू सेल्स, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। और आपने परचेस रिटर्न बुक में बाय मिस्टेक लिखा था तो डिडक्ट आपने परचेस में से किया होगा। अभी आपको पता चला तो क्या करोगे, ऐड टू परचेस, परचेस में आप क्या करोगे, प्लस, और परचेस में प्लस करोगे तो क्रेडिटर्स में भी प्लस करो, क्रेडिटर्स में भी प्लस करो। सो ऐड टू क्रेडिटर्स। ओके, क्लियर फ्रेंड्स? Last adjustment friend, 1/4 share of advertisement expense is to be carried forward to the next year. चलो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखो, हाँ इट इज 36,000। सो 36,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टिक करो। 36,000 में से 1/4, 36,000 इंटू 1/4 करो, 9,000। सो 9,000 इज प्रीपेड। प्रीपेड मतलब इट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्या वर्ड दिया है, 1/4 शेयर इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए इसका मतलब हुआ इट इज प्रीपेड। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 9,000। प्रीपेड मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट फ्रेंड। तो ये प्रीपेड 1/4 है। अगर 50% भी देते हैं कभी लोग तो हाफ करना है। ओके, सो प्रीपेड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट asset side. So all adjustments are over. Now let's start from the credit side first. Capital you to write on the credit side of partners capital account. आपको पूरा लिखना है फ्रेंड्स। मैंने थोड़ा 2 by ऐसा नहीं लिखा है, टाइटल भी नहीं लिखा है, आपको बोर्ड में लिखना कंपलसरी है। सो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द कैपिटल 1,40,000, 1,34,000। सेल्स डन, गुड्स रिटर्न डेबिट डन, पेएबल्स डन, सैलरी आउटस्टैंडिंग। वैसे ये ओरिजिनली वर्ड है वेजिस आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है तो मैं लिखता हूँ, अदरवाइज दिस इज माय एडवाइस, बेटर वर्ड इज दिस आउटस्टैंडिंग वेजिस है। ओरिजिनल बुक में ये वर्ड है, फिर भी आप कंफर्म करना आपके टीचर्स से। 700 जो भी आउटस्टैंडिंग है वैसे लिखना है यहाँ पे। वैसे वर्ड वेजिस है, ये मुझे 100% श्योर है, ये बोर्ड की ओरिजिनल बुक में वेजिस वर्ड है। नेक्स्ट, लोन ऑफ धर्मा। लोन ऑफ धर्मा 30,000, इट इज योर लाइब्रेरी। धर्मा की लोन है, पार्टनर्स की लोन है, तो यू हैव टू कैलकुलेट 6% इंटरेस्ट। 6% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। इट इज 1800, लेकिन ट्रायल बैलेंस में भी 1800 दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब 1800 का 1800 ही है। सो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, discount received is your income. So P&L credit side. Bank overdraft is a liability. Bank OD is a liability. Chalo, credit side is over. Now debit side, drawings you have to write on the debit side of partners capital account, drawings. Next, opening stock, trading account debit side, opening stock, purchase done, goods return done, रिसीवेबल मतलब डेटर्स डन। सैलरी, यहाँ पे देखो ये हिडन एडजस्टमेंट है। सैलरी 13,200, सैलरी 13,200, इट इज अप टू 28 फरवरी। अप टू 28 फरवरी का मतलब ये हुआ कि सैलरी ऑफ मार्च इज अनपेड। सैलरी ऑफ मार्च इज अनपेड मतलब ये हुआ कि 1/4/18 टू 28/2, ये 11 मंथ्स हुआ। यहाँ से यहाँ तक हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स। सो 11 मंथ्स की सैलरी दी गई है 13,200, देन 1 मंथ इज हाउ मच, इट कम्स 1,200 रुपीज।
तो 1200 रुपीज सैलरी मार्च की आउटस्टैंडिंग है, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। ओके, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको प्लस करनी है। सर कैसे पता चले वो आउटस्टैंडिंग है? देखो फिर से, इट इज अप टू 28 फरवरी एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। तो मार्च की सैलरी कहाँ चली गई ये आपको ढूंढना है। दैट इज यू नो इट इज हिडन एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1418 to 28 to 19 it is up to February means salary paid for 11 months। 11 months की सैलरी है 13,200। सो 12 months की कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 14,400। सो 14,400 इट मीन्स 1,200 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट liability side। okay, next machinery done, depreciation done, building asset side, building asset side। next wages 1600, wages where to write? Trading account debit side, wages trading account debit side। then insurance premium P&L debit, insurance premium P&L debit। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस P&L डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L डेबिट। फर्नीचर एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड ओके 87,000। देन स्टेशनरी एक्सपेंस डन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डन एंड कैश बैलेंस बैलेंस शीट एसेट साइड। यस, सो फ्रेंड्स ऑल एंट्रीज आर ओवर, एडजस्टमेंट्स आर ओवर। अभी क्या करोगे? अभी आप ट्रेडिंग क्लोज करोगे। क्रेडिट साइड टोटल इज 1,37,000, डिफरेंस इज 41,400। ये हो गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? P&L अकाउंट। सो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड GP इंटू ब्रैकेट लिखना है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ना टोटल कंपेयर करो। सो अगर आप टोटल कंपेयर करोगे फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है दया। सो क्या गड़बड़ है? Total of debit side is more. Total of debit side is more. So 61,000 is the total, and this total you have to minus 41,400 and 6,600. It is 48,000. 48,000 इसमें से माइनस करोगे तो नेट लॉस मिलेगा। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट पार्टनर्स रिलेटेड नहीं है। नो एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। So that's why P&L appropriation is not required। So ये जो लॉस आया यही आपका डिविजिबल लॉस, यही आपका नेट लॉस। So this is distributed between partners equally 1:1, 6,500, 6,500। So divisible loss partners capital account debit side। अभी क्या करोगे? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज द बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गई आपकी क्लोजिंग capital and that you have to record on the liability side। so capital of Dharma and Karma, so 1,09,000 and 1,22,500 खत्म। अब क्या करोगे? बस अब भगवान का नाम लोगे और दोनों साइड का टोटल करोगे, राइट। सो टोटल ऑफ दिस इज 3,46,800 and this total is also same। okay friends, so revise this sum। ये आपका पेपर सॉल्यूशन है। डू दिस सम ट्वाइस। फिर भी बता देता हूँ कि फाइनल अकाउंट में कोई बोर्ड का भरोसा नहीं है। ऐसे ही टेक्स्ट बुक में से नहीं उठा के पूछते, ये कुछ ना कुछ चेंजेस करते, राइट। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं करनी है और भी रेफरेंस बुक करनी है टू स्कोर 100 out of 100 मार्क्स।